Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are going to start our next lecture today. That is the continuation of our previous article that is related to convection heat transfer. So today we will discuss about the mode of free convection, and we have discussed in our previous lectures that there are different modes of convection, and there are majorly free convection and forced convection. And in case of free convection, basically there is a natural movement of a fluid over any surface, and due to that movement there is a transfer of heat from hot surface to cold fluid, or from hot fluid to cold surface, or from hot fluid to cold fluid, like in this manner. But in case of forced convection, we use any fan, pump, and or any other medium for the transfer of heat. So today we will first discuss about the free convection. When a surface is maintained at a temperature higher or lower than that of a fluid, a thin layer of fluid adjacent to surface gets heated or cooled. So in case of convection, you know that always the adjacent surface, the surface that is linked with the adjacent layer of fluid, that is used for the transfer of. Basically this movement, this transfer is due to the density difference that is created between the adjacent layer of fluid and the stagnant fluid surrounding it. You should keep in mind the stagnant layer, that is the layer that is adjacent layer of the fluid with the surface. And at this layer, why we called it a stagnant layer? The velocity of fluid is almost zero. The density difference introduces a buoyancy force causing a flow of fluid near the surface. You know that when the fluid gets heated, its density decreases, and due to the change in density, it moves away from the surface of the fluid, and to cover and occupy that space, the surrounding fluids come in contact with that surface. So heat transfer under this condition is also known as free convection or natural convection. Free convection or natural convection is defined as the process of heat transfer which occurs due to a movement of fluid particles by density changes with temperature difference in a fluid. You know that it's a very simple example is that when you are sitting in a room, the hot air goes on the upper side, and the cold air from the surrounding comes to fill up that empty space. Basically, it creates a vacuum. When you are using an exhaust fan, what happens? Exhaust fan basically discharges the hot air that is collected on the upper area of the room, and it creates a vacuum, basically a density difference, a negative pressure within the lower side of the room. And due to that vacuum, that density difference, the air from the surroundings moves to fill up that vacuum, that air, and due to that you get more cold air within the
empty spaces of the room. The rate of heat transfer is calculated by Newton's law of cooling. This is basically Newton's-Raphmann's law. Q is equal to H A Ts minus T infinity. Here H is the convective coefficient, A is the surface area of the medium from which we are transferring heat, and Ts is the surface temperature, and T infinity is the basically temperature of the surrounding air, ambient temperature fluid. So first we will now discuss about the momentum and energy equations for laminar and free convection. You know that there are majorly two categories of the fluid flow. One is the turbulent flow and second one is the laminar flow. When the Reynolds number is less than 2000 and 2200 in different conditions, we assume that it is a laminar flow. From 2200 or 2000 to 2800 and in some cases up to 4000, it is considered to be as transient flow. And from 2800 or more than 4000 in different conditions, it is considered as turbulent flow. Keep in mind, in laminar flow, the heat transfer rate is minimum, and turbulent flow heat transfer rate is maximum. So what you need to do, you need to draw this diagram on a page available with you, and then you will also post that figure to me. Before that, I will explain some major parameters related to this figure, and after that you would be able to post this figure to me, and you have to keep this figure with you so that for the later discussion you can see this figure available with you. Okay, let me explain first. You can see this is a plate. This is a vertical plate. Keep in mind, this is a vertical plate, and fluid is flowing over here. This is the fluid flow. This is a plate. This is the fluid flow. Here x is equal to 0, and from here x is moving in this direction, means distance is increasing and fluid is flowing over its surface. What this line is showing, this is the velocity boundary layer. What happens actually when the fluid comes in contact with this surface? Its velocity is almost 0 at this point, and with the increase in distance, this velocity intended to increase, and it increases in a systematic manner, and at some specific point it achieves its maximum value. This delta, that is basically showing the distance of the fluid layers, and this distance basically from this plate is showing that with the increase in distance, the velocity is continuously increasing. This is basically the middle layer of the fluid where the velocity is maximum. Initially it is 0, and with the passage of time and with the increase in distance, when it flows over the plate, the velocity increases. This basically showing U is showing the velocity profile. You can see that the layers which are very near to this plate,
their velocity is minimum. At the initial stage here, um, the velocity of all the layers of the fluid is almost the same, and these are at the minimum level. But with the increase in distance, the velocity of the central layer goes on increasing, and the velocity of the adjacent layer, which is just near adjacent to the plate, its velocity is almost zero, and it is also known as stagnant layer, या आप कह सकते हैं कि ये वो वाली लेयर है जिसकी वेलोसिटी जीरो है. ओके, नाउ जैसे जैसे डिस्टेंस इसका इंक्रीज होता जाता है, इसकी जो एडजेसेंट लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है. एंड द पॉइंट कम्स व्हेन द सेंट्रल लेयर्स गॉट्स इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी. मजीद उससे इसकी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ नहीं सकती. वो पॉइंट जहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है और आपके पास जो एडजेसेंट लेयर है उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि यहाँ पे जो आपका फ्लो है दैट इज नाउ फुली डेवलप्ड. और उससे जो पहले वाला हिस्सा है जहाँ पर ये वेलोसिटी प्रोफाइल कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, मीन द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग स्लो बाय स्लो, उस एरिया को हम डेवलपिंग रीजन कहते हैं. इसके बाद इस पॉइंट के बाद ये जो प्रोफाइल है इसमें कोई चेंज नहीं आती. लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमाम जो एजेस के दे आर एट द सेम लेवल, मीन तमाम एजेस की वेलोसिटी सेम है. बट एट दिस पॉइंट द सेंट्रल लेयर हैज अ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड अदर लेयर्स हैव डिफरेंट वेलोसिटी. ये वेलोसिटी अगर हम इस प्लेट की एजेस की तरह मूव करना शुरू करें तो आस्ता आस्ता कम होते होते जीरो हो जाती है. यहाँ पे हम कहते हैं कि फ्लो फुली डेवलप हो चुका है और इससे पहले फ्लो डेवलपिंग में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. So this basically these lines are showing the local velocity distribution. और उसके अगेंस्ट अगर हम लोग देखें तो ये जो लाइन शो हो रही है ये बेसिकली बता रही है लोकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. ये आपका Ts सरफेस टेम्परेचर है एंड इट इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द एम्बिएंट एयर और फ्लूइड, और हीट इधर से इधर ट्रांसफर हो रही है. तो जिस पॉइंट के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी प्रोफाइल फुल डेवलप हो जाती है उससे पहले जो आपके पास टेम्परेचर चेंजेस होती हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही होती हैं, बढ़ रही होती है. और जब यहाँ पे ये वेलोसिटी प्रोफाइल डेवलप हो जाती है उसके बाद आपकी जो टेम्परेचर चेंजेस हैं, जो Ts और T इन्फिनिटी का डिफरेंस क्या है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है. अब ये बेसिकली जो है वो लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है कि लेमिनार फ्लो एक खास रेंज में होता है, उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है कि 2000 to 2200 हो. अब किस केस में 2000 होती है, किस केस में 2200 होती है, ये फ्लूइड टू फ्लूइड वेरी करता है, अप्लाइड कंडीशंस के मुताबिक चीज़ें वेरी करती है. इसी तरह कुछ केसेस में 2800 के बाद हम कंसिडर करते हैं कि फ्लो जो है वो टर्बुलेंट रीजन में चला गया है, कुछ में 4000 के बाद करते हैं. लेकिन 22,800 या 4000 के बाद फिर अनलिमिटेड रेंज तक फ्लूइड जो है वो टर्बुलेंट कंडीशन. तो ये बेसिकली हमारे पास जो वर्टिकल प्लेट है उस पे जो है ना हमारे पास फ्लूइड फ्लो की प्रोफाइल है. दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल, और ये वेलोसिटी प्रोफाइल जो कैन सी आस्ता इंक्रीज हो रही है और एक स्टेज पे आके ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेती है. और ये बेसिकली जो है वो आपके पास जो डिस्टेंस है ये बेसिकली आपके पास बता रहा है कि इसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है, कितनी हाइट पे कितने डिस्टेंस पे जाके जो है वो ये वेलोसिटी प्रोफाइल फुली डेवलप हुई है.
और फुली डेवलप कहाँ पे होती है, जहाँ पे ये जो हमारे पास सेंट्रल लेयर है वो मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर लेती है, और उसके बाद ये प्रोफाइल सेम रहती है थ्रू आउट द सिस्टम, उसमें चेंज किया। हाँ, टर्बुलेंट रीजन में जाके जो कि एडीज प्रोड्यूस होने शुरू हो जाती है, टर्बुलेंस होती है, वहाँ पे कंडीशन कुछ होती है। ये लैमिनार फ्लो की आप लोग जो है वो विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स ये जो वेल फिगर है इसको अपने पेजेस के ऊपर ड्रा करेंगे। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, और देन उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ये फिगर ड्रा करने के बाद उसकी पिक्चर लेके मुझे पोस्ट करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Okay, students, I think so. You should be done because it's almost 5 minutes to go. So, okay, let's move to the next slide. Okay, it is shown that a free convection boundary layer forms on a flat vertical plate when it is heated. Plastic profile is different from that of the forced convection boundary layer. At the surface of the wall, the velocity is zero. It indicates at the maximum value and then decreases to zero again at the boundary layer. Hence, free stream is at rest. तो इसमें होता ये है कि प्लेट की सरफेस को टच करने से पहले तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, उसको जो है ना जैसे ही टच करती है तो फिर जो है ना सेंट्रल लेयर की वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी अचानक जीरो हो जाती है, फिर आस्ते आस्ते इंक्रीज होने शुरू होती है और सेंट्रल लेयर की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है और जो स्टैग्नेंट लेयर होती है उसकी अगेन ऑलमोस्ट जीरो. At some distance from the bottom edge, the boundary layer is laminar initially and then changes to turbulent. वो velocity के हवाले से है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है तो laminar है, उससे ज़्यादा है तो turbulent. Turbulence depends on the fluid properties and temperature difference. Momentum equation for the free convection. In free convection, the additional force is the body force. बॉडी फोर्स से मुराद वो फोर्सेस के basically which are exerted by the system. Momentum equation for free convection is equal to rho into u partial u over partial x. Rho is the density, u is the velocity, partial u over partial x is the rate of change of velocity in x direction. This is basically showing the acceleration, plus v its vertical component in y direction, partial u over partial y. अब देखिए जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक उसका u कंपोनेंट है जो x डायरेक्शन में है, एक उसका v कंपोनेंट है जो y डायरेक्शन में. ओके, अब जब आप x डायरेक्शन लेंगे तो आप जो u है, अब ये जो u है इसके अगेन दो कंपोनेंट है, एक इसका टोटली x डायरेक्शन में है एंड वन पार्ट इज इन y डायरेक्शन. ये आप जो वेलोसिटी v है ये हम वर्टिकल डायरेक्शन में y डायरेक्शन में लेते हैं, बट इसके भी अगेन दो कंपोनेंट्स है, वन इज इन x डायरेक्शन, वन इज इन y डायरेक्शन. ओके, तो आपके पास क्या है, रो डेंसिटी है u का फिर x कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी v जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, और फिर उस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में, जो आपके पास u है उसका जो कंपोनेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में. ये y डायरेक्शन में है और फिर u का जो कंपोनेंट है y डायरेक्शन is equal to mu. Mu is the viscosity, partial square u over partial y square minus rho g minus partial rho over partial x. अब क्या है, x डायरेक्शन में डेंसिटी चेंज हो रही है, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए. इसकी डेरिवेशन जो है वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं. इन फ्री कन्वेक्शन एट द बाउंड्री लेयर rho tends to rho infinity and u and v approaches to zero. जो बाउंड्री लेयर है उस पे जो है आपके पास जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी और जो आपके पास u and v की वैल्यूज होंगी they would approach to zero. The equation then becomes 0 is equal to minus partial p over partial x. This is basically partial rho. Okay, minus rho infinity into
जी, ये आपके पास पार्शियल रो ओवर पार्शियल एक्स माइनस रो इंटेंडेड टू इंफिनिटी, ओके। और पार्शियल रो ओवर पार्शियल एक्स is equal to minus rho infinity into changes in pressure on the height dx is equal to the weight per unit area of the fluid element. On the height dx is equal to weight per unit area of the fluid element. अब आपके पास प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर इस केस में हम लोग वेट ले ले W ओवर एरिया। अब इस केस में ये है कि ये जो डेंसिटी है ना, ओके, इधर इसने उसको प्रेशर के फॉर्म में ही शो किया हुआ है। तो जो आपके पास डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू बेसिकली m ओवर v, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो उस चीज़ को अगर हम वेट की टर्म्स में ले लें तो हम लोग अब ये जैसे x है ना, तो यहाँ पे दूसरा पैरामीटर क्या होगा? 1 होगा। जैसे हमने पिछले केसेस में भी देखा है कि एक साइड पे तो हम वेरिएबल रह रहे हैं, एक साइड पे हम लोग तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया दैट वुड बी इक्वल टू चेंज इन डेंसिटी प्लस द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जैसे रो जी एच होता है ना आपके पास, वो पोटेंशियल को बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर हाइट को जो है वो कांस्टेंट ले लें तो इट वुड बी रो जी। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 8.2 इन इक्वेशन 8.1, ये आपके पास वो सेम वही इक्वेशन है जो हम लोगों ने पीछे देखी है। दिस वन इक्वेशन 8.1, तो आपके पास क्या आ जाएगा? रो यू डी पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स प्लस बी इंटू पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई is equal to mu partial square u over partial y square plus g into rho infinity minus rho, ओके। तो आप लोगों के पास आ जाएगा, ओके। ये जो आपके पास ये पैरामीटर है पार्शियल पी आर रो ओवर एक्स, इसको आप रिप्लेस कर ले माइनस रो इन्फिनिटी जी से यहाँ पे। तो इसमें आपके पास g जो है वो कांस्टेंट कॉमन है और अंदर आपके पास बच जाएगा रो इन्फिनिटी माइनस डेंसिटी डिफरेंस। रो इन्फिनिटी माइनस रो में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कोफिशिएंट। इस चीज को हम वॉल्यूम कोफिशिएंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज बीटा। सो इट वुड बी इक्वल टू 1 ओवर बीटा किसके इक्वल होता है? 1 ओवर रो इंटू पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर। अच्छा, अब डेंसिटी जब भी चेंज होती है ना तो आपका बेसिकली प्रेशर चेंज होता है। देखिए जहाँ पे भी आपके पास एयर की वेलोसिटी कम होगी, वैक्यूम क्रिएट होगा तो प्रेशर चेंज, एंड दैट इज इक्वल टू 1 ओवर रो infinity minus rho over t minus t infinity. Now the equation 8.3 becomes, this equation becomes rho into u partial u over partial x, आपके पास ये आ गया है, प्लस v partial u over partial y is equal to mu partial square u over partial y square प्लस रो g बीटा। इस चीज को आपने जो है वो बीटा से रिप्लेस कर दिया इनटू ये आपके पास बेसिकली यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी, रो इन्फिनिटी माइनस रो की वैल्यू निकालने, बीटा इज इक्वल टू बीटा इंटू रो टी माइनस टी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस चीज को आपने यहाँ से
रो इन्फिनिटी माइनस रो की वैल्यू निकाल के इसमें तो एनर्जी इक्वेशन फॉर फ्री कन्वेक्शन इज, तो ये आपके पास जो है वो एनर्जी इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, रो सी पी इंटू यू पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल टी ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू के पार्शियल स्क्वायर टी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। मोमेंटम इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी। और अब अगर हमने एनर्जी इक्वेशन देखनी है तो उसके लिए जो है ना हमारे पास ये जो वेलोसिटी है, मोमेंटम इज ऑलवेज ड्यू टू वेलोसिटी एंड एनर्जी इज ऑलवेज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो हम इसी चीज़ को ऊपर टेम्परेचर ग्रेडियंट से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिकली जो यही चीज़ है, इसी चीज़ को हम लोगों ने इसी तरीके से कैलकुलेशंस करके बेसिकली वेलोसिटी जहाँ जहाँ पे है उसको टेम्परेचर से रिप्लेस कर देना है तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसमें क्या है, u जो है वो आपके पास x डायरेक्शन में है, v y डायरेक्शन में है और k जो है वो आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक हो गया। cp क्या है, फ्लूइड की स्पेसिफिक कैपेसिटी है और जो रो की वैल्यू है वो उसकी डेंसिटी। ओके, velocity and temperature profile on a vertical flat plate. Here velocity and temperature profiles are identical at any x. The temperature profile may be taken as, ये उसके लिए एक जेनेरिक इक्वेशन दी हुई है, T माइनस टी इन्फिनिटी, T टेम्परेचर है एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट, कोई भी आपके पास जो है वो पॉइंट हो सकता है, और जो T इन्फिनिटी है वो बेसिकली आपके पास एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर है, Ts जो है वो प्लेट का सरफेस टेम्परेचर है, C1, C2 और C3 आर द कॉन्स्टेंट्स, y जो है वो y डायरेक्शन में जो हम कंपोनेंट ले रहे हैं, और जो डेल्टा है ये बेसिकली डिस्टेंस है फ्रॉम द प्लेट सरफेस टू द वेलोसिटी प्रोफाइल। ये जैसे अगर ये है ना तो इस तरह से वेलोसिटी प्रोफाइल बन रही है y डायरेक्शन में, तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये डेल्टा इज द डिस्टेंस। एट बाउंड्री कंडीशंस एट y इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू ts। अब ये देखिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे ts। ओके, तो यहाँ पे y क्या होगा, ये बेसिकली x कंपोनेंट है हमारे पास, तो यहाँ पे y हमारे पास 0 है और x जो है वो आपके पास दोनों 0 है। इस लाइन के ऊपर x और y, x जो है वो उसकी वैल्यू इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है और y की वैल्यू क्या है वो 0 है, और इस लाइन के ऊपर हमारे पास जो x है वो पूरी लाइन पे 0 होगा और y की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होगी। एट y इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू ts, मतलब यहाँ पे y 0 है तो टेम्परेचर किसके इक्वल है, सरफेस टेम्परेचर के इक्वल है। एट y इज इक्वल टू डेल्टा, t इज इक्वल टू टी इन्फिनिटी, जैसे जैसे ये वेलोसिटी प्रोफाइल इंक्रीज होती जा रही है तो t इन्फिनिटी बेसिकली क्या आपके पास फ्लूइड के टेम्परेचर को शो कर रहा है, तो इस पूरी लाइन के ऊपर डेल्टा की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड का टेम्परेचर होगा वो बेसिकली टी इन्फिनिटी फ्लूइड के टेम्परेचर को शो कर रहा है। एट y इज इक्वल टू डेल्टा पार्शियल t ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 0। अब ये जो चीज है ना ये बेसिकली शो कर रहा है पार्शियल टी, ये टेम्परेचर को शो कर रहा है, और टेम्परेचर बेसिकली जो है वो आपके पास एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाती है, मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट हो जाती है। तो जब टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है तो उस वक्त जो चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या होगा, आपके पास 0 हो जाएगा, यानी कि y डायरेक्शन में जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट बिकम्स 0। ओके, आप सब बच्चों को जो है वो स्क्रीन मेरी विजिबल है, प्लीज रेज योर हैंड्स। देयर इज अ माइनर पावर शटडाउन, सो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना आपको मसला हो, लेकिन आई होप सो इट वुड बी फिक्स्ड। स्क्रीन शुड बी विजिबल टू यू।
बेटा आप 4-5 मिनट होल्ड करेंगे क्योंकि पावर शट डाउन हुआ है, उसकी वजह से इंटरनेट में थोड़ी सी डिस्टर्बन आ रही है। वी विल बी बैक, स्टे ऑनलाइन प्लीज। Uh, I hoping the screen is again visible to you. Please raise your hands and confirm me the screen is visible to you. Okay, thank you so much. So let me start from here. Okay, I told you in previous slides that at the stages where the velocity profile is fully developed, the temperature becomes constant. The temperature between the plate surface and the fluid layer mean the Ts and T infinity, they becomes constant and the difference is no more existing there. So the difference would be same. Temperature distribution is given by T minus T infinity over Ts minus T infinity is equal to 1 minus y over delta whole square. So velocity profile would be u over ux is equal to a plus b, y over delta plus c, y over delta whole square plus t, y over delta whole cube. Basically a, b, c and t are the constants. The boundary conditions are at y is equal to 0, u is equal to 0. और जब y 0 होगा तो वहां पे जो है आपके पास u 0 है। विकास में अगर ये अगेन हमारे पास एक प्लेट है और ये जो है वह आपके पास x और y डायरेक्शन से, और जो u है वो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है और जो v है वो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो यहाँ पे जहाँ पे y 0 है वहाँ पे u भी 0 है और वहाँ पे v भी 0। एट y इज इक्वल टू डेल्टा पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे आपके पास ये जो डेल्टा है, यहाँ पे बेसिकली आपकी जो वेलोसिटी प्रोफाइल है पूरी डेवलप हो चुकी है, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल y, यानी कि u का जो कंपोनेंट है वो y डायरेक्शन में वो 0 होगा, x डायरेक्शन में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एट y इज इक्वल टू डेल्टा u इज इक्वल टू 0। at y is equal to 0, partial square u over partial y square is equal to minus g beta ts minus t infinity over v। ये बेसिकली जो है आपके पास इटैलिक v है, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विस्कोसिटीज, वन इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड वन इज द डायनामिक विस्कोसिटी। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय u ओवर ux। ये आपके पास गिवन वेलोसिटी है और ये उसका x कंपोनेंट है। g बीटा डेल्टा स्क्वायर ts माइनस टी इंफिनिटी ओवर 4v y ओवर डेल्टा इंटू 1 माइनस y ओवर डेल्टा होल स्क्वायर। ये आपके पास जो है इसी इक्वेशन के ऊपर जब आप लोग बाउंड्री कंडीशंस पुट करते हैं तो आपके पास ये वाली फॉर्म अटेन। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए तो u इज इक्वल टू यू इंटू वाई ओवर डेल्टा
इंटू 1 माइनस वाई ओवर डेल्टा होल स्क्वायर, इसको क्लोज्ड फॉर्म में लिख लिया है, वेयर u1 इज इक्वल टू ux g बीटा डेल्टा स्क्वायर टी एस माइनस टी इन्फिनिटी ओवर 4 वी एट सम स्पेसिफिक पॉइंट। कोई अगर आप पॉइंट 1 लेते हैं तो वहां पे आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये आपके पास एम्पेरिकल कोरिलेशन फॉर फ्री कन्वेक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपके तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी ये चीज़ यूज़ होगी, इसको बड़ा क्रिटिकली देखना है। डिफरेंट हमारे पास हम लोगों ने डायमेंशनलेस नंबर स्टडी किए हैं और कोरिलेशन स्टडी किए हैं जो फ्री कन्वेक्शन के केस में जो है वो इसको फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ होते हैं। सेम पैरामीटर्स जो है वो यूज होते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन के केस में भी, लेकिन वहां भी इनके लिए कोरिलेशंस जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। अब देखिएगा, फॉर फ्री कन्वेक्शन द फॉलोइंग डायमेंशनलेस नंबर्स आर अप्लाइड। नुसेल्ट नंबर है, तो फ्री कन्वेक्शन के केस में नुसेल्ट नंबर की वैल्यू के लिए जो कोरिलेशन यूज होता है वो है एच एल ओवर के। एच इज द कन्वेक्टिव कोफिशिएंट, एल इज द लेंथ ऑफ द मीडियम प्लेट है, पाइप है, व्हाटसोएवर इज, और के जो है वो फ्लूइड की थर्मल कंडक्टिविटी। ग्रेशियस नंबर क्या है? एल क्यूब बीटा जी डेल्टा टी ओवर वी स्क्वायर। बीटा के बारे में हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि क्या चीज़ है। एल इज द लेंथ, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस एंड वी स्क्वायर इज बेसिकली दिस इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। प्रोडेल्ट नंबर जो है वो म्यू है, डायनामिक विस्कोसिटी है, सीपी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ फ्लूइड है, और के जो है वो आपके पास आ जाता है क्या वाला? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ। अब ये जो तीन को रिलेशंस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होते हैं? फ्री कन्वेक्शन के लिए यूज होते हैं। यही को रिलेशन जब फोर्स के लिए यूज होंगे तो इनकी डायमेंशन, इनके जो पैरामीटर्स होंगे वो चेंज। फॉर वर्टिकल प्लेट्स एंड सिलेंडर्स, अगर आपके पास वर्टिकल प्लेट्स हैं या सिलेंडर है और फ्लो लेमिनार है तो नुसेल्ट नंबर के लिए हम लोग ये कोरिलेशन यूज करेंगे। 0.59 जी आर इंटू पी आर पावर 1/4 और जी आर ग्रेशियस नंबर और प्रेजेंट नंबर की वैल्यू हम इन दो कोरिलेशन से कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे लेमिनार फ्लो में जो ये प्रोडक्ट है वो 10⁻⁴ से 10⁻⁹ के रेंज में होगा। टर्बुलेंट फ्लो के केस में हम लोग ये कोरिलेशन यूज करेंगे और टर्बुलेंट फ्लो की रेंज में हमें क्या नुसेल्ट जी ग्रेशियस नंबर और प्रोडक्ट नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है वो इस रेंज में होगा। TF जो है वो मीन फिल्म टेम्परेचर है, TS माइनस टी इन्फिनिटी ओवर 2, यानी कि फ्लूइड का एवरेज टेम्परेचर है। इसी तरह से अगर हॉरिजॉन्टल प्लेट है तो फॉर इरेगुलर प्लेट कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ क्या है? सरफेस एरिया और पेरीमीटर ऑफ द प्लेट, मतलब उसकी चारों साइडों को ऐड कर। द अपर सरफेस हीटेड और लोअर सरफेस कूल्ड। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेट के लिए कोरिलेशन है, ये आपको मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनकी फार्मूला शीट भी बना सकते हो। हॉरिजॉन्टल प्लेट के केस में अगर लेमिनार फ्लो है तो नुसेल्ट नंबर की वैल्यू आप लोग इस कोरिलेशन से निकालेंगे और वो लेमिनार फ्लो के लिए इन दोनों के प्रोडक्ट की रेंज दी हुई है। टर्बुलेंट फ्लो के लिए ये वाला कोरिलेशन यूज होगा और उन दोनों के लिए इन दोनों के प्रोडक्ट की रेंज दी हुई है। आप ये ज़रा नोट करें, इस केस में वर्टिकल प्लेट एंड सिलेंडर है तो ये नुसेल्ट नंबर टर्बुलेंट और लेमिनार फ्लो के लिए और है, हॉरिजॉन्टल के लिए और है। अब ये कब है? ये वाले रिलेशंस कब यूज होंगे? जब अपर सरफेस हीटेड है। अगर लोअर सरफेस हीटेड है और अपर सरफेस कूल्ड है तो फिर लेमिनार फ्लो के लिए कोरिलेशन ये होगा और टर्बुलेंट फ्लो के लिए कोरिलेशन ये होगा। तो ये बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, ये सारे कोरिलेशन आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पे कौन सी कंडीशन दी हुई है और आपने कौन सा कोरिलेशन वहां पे यूज करना। हॉरिजॉन्टल सिलेंडर्स हैं, अगर वर्टिकल सिलेंडर के लिए आपने पीछे देखा, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर्स हैं तो आपके पास नुसेल्ट नंबर की वैल्यू ये होगी। इसमें सी और एम क्या है? वो कांस्टेंट है और इनकी वैल्यूज जो है वो हम लोग जो है वो डाटा बुक में देख लेंगे। स्फीयर्स के लिए नुसेल्ट नंबर की वैल्यू ये दी हुई है 2 + 0.43 इंटू जी ग्रेशियस नंबर इंटू प्रोडेल्ट नंबर। तो ये जी बेसिकली चूंकि वो उसके डायमीटर के हवाले से।
तो इन दोनों की वैल्यू की रेंज ये दी हुई है, ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट की रेंज। तो ये कुछ को रिलेशन हैं जो आपने डायरेक्टली यूज करने हैं, इनको आप लोगों को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपके पास अवेलेबल है। सिंप्लीफाइड फ्री कन्वेक्शन इक्वेशंस फॉर एयर। Heat transfer coefficient from different surfaces to air at atmospheric pressure is given by H is equal to C into partial delta T over L power m. C इसमें क्या है, C and M are constants depending upon the geometry and flow conditions. कि जो आपके पास ज्योमेट्री है चैनल की जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो किस तरह का है, और फ्लो कंडीशंस क्या है, लैमिनार है, टर्बुलेंट है, ट्रांजिशन स्टेट में है, किस में है, और एल जो है वो लेंथ है डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री एंड फ्लो कंडीशंस। अब देखें ये जो लेंथ है ना, इसमें भी हमारे पास जैसे दो रीजन है ना, एक हमारे पास फुली डेवलप्ड रीजन है, एक हमारे पास डेवलपिंग रीजन है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास जहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल अभी डेवलप हो रही होती है, उस रीजन में हम क्या करते हैं कि जो लेंथ होती है ना, मतलब मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे ये वेलोसिटी प्रोफाइल ये इस तरह से ड्रा करूँ, तो ये डेल्टा यहाँ तक अभी वेलोसिटी प्रोफाइल डेवलप हो रही, ठीक है। तो क्या होगा कि ये आपके पास ये जो लेंथ होगी ना, इसको हम लोग डेवलपिंग लेंथ कहेंगे, और इसको हम एंट्री रीजन भी कहते हैं। और इसके बाद वाली जो लेंथ होगी उसको हम फुली डेवलप्ड रीजन कहते हैं, जहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल डेवलप हो चुकी होती है, उसमें उसके बाद चेंजेस कोई नहीं आते, तो उसको हम जो वो लेंथ होती है उसको हम फुली डेवलप्ड लेंथ कहेंगे। तो जो ये जो डेवलपिंग रीजन होता है ना, ये याद रखें, इस रीजन में हीट ट्रांसफर रेट जो होता है, कन्वेक्शन ट्रांसफर जो होता है ना, सबसे ज्यादा होता है। ओके, यह फ्री कन्वेक्शन के लिए कुछ को रिलेशन दिए हुए हैं, सरफेसेस एंड इट्स ओरिएंटेशन है, वर्टिकल प्लेट और सिलेंडर है। लेमिनार फ्लो के लिए आपने अगर एच की वैल्यू निकालनी है तो वो आप लोगों के पास ये को रिलेशन है टर्बुलेंट फ्लो के लिए, और है ये डेल्टा टी जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट को। हॉरिजेंटल सिलेंडर है तो उसके लिए ये लेमिनार और टर्बुलेंट के लिए को रिलेशन है। हॉरिजेंटल प्लेट है और हीटेड सरफेस फेसिंग अप है तो ये को रिलेशन है, और अगर हीटिंग फेस सरफेस फेसिंग डाउन है तो फिर ये को रिलेशन है। टर्बुलेंट के लिए नहीं दिया हुआ है इस केस में, यहाँ पे स्फीयर के केस में हमारे पास ये को रिलेशन। तो डिफरेंट हमारे पास ये को रिलेशन से, इन को रिलेशन को हमने सिचुएशन के मुताबिक यूज करना है जो हमारे डिजायर्ड कंडीशंस होंगी। ऐसा नहीं है कि ये जेनेरिक फार्मूलाज में एक ही फार्मूला जो है वो यूनिवर्सल है, हर जगह भी इम्प्लीमेंट हो जाए। नेचुरल कन्वेक्शन फ्रॉम फिन्ड सरफेस, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर ऑप्टिमम स्पेसिंग। अब अगर फिन्ड सरफेस है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बाइक्स वगैरह के ऊपर आपके पास फिन्स लगी होती हैं, इस तरह की सरफेस है, तो उसके केस में आपके पास कन्वेक्टिव कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू एच इज इक्वल टू 1.13 के ओवर एस ऑप्टिम। के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, और एस ऑप्टिमम क्या है, ऑप्टिमम फिन स्पेसिंग है, कि जो दो फिन्स लगी हुई हैं, अगर आपने बाइक का इंजन देखा हो तो उसके बाहर वाली सरफेस पे जो फिन्स लगी होती है उनके दरमियान एक स्पेसिंग होती है जो एयर के फ्लो के लिए होती है। और ऑप्टिमम स्पेसिंग की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 2.714 लेंथ ओवर, ये आपके पास रिलाई नंबर है, पावर 0.25। अब यहाँ से जो है ना आपके पास ये एक जो है ना एस ऑप्टिमम की वैल्यू आ गई। एल क्या, लेंथ इन वर्टिकल डायरेक्शन, और आर रिलाई नंबर। तो अब यहाँ से आपको ये भी आइडिया होगा कि वो जो फिन स्पेसिंग है वो किस तरह से एडजस्ट की है, उसकी जाती है, उसके लिए कोरिलेशन गिवन है हमारे पास। The rate of heat transfer by natural convection from fins is given by Q is equal to H। ये क्या है, एरिया है, H A होता है ना,
तो ये एरिया की वैल्यू दी हुई है, फिन एरिया 2n नंबर ऑफ फिन्स, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, W/S ऑप्टिमम प्लस T। T क्या है, थिकनेस है फिन। L क्या है, लेंथ है वर्टिकल डायरेक्शन में, और आपके पास ये उसकी जो H है ये उसकी हाइट आ गई है। TS जो है वो उसका सरफेस टेम्परेचर है। T इन्फिनिटी जो है वो उसका एम्बिएंट टेम्परेचर है। H क्या है, ये फिन की हाइट आ गई, ठीक हो गया। और ये T क्या है, ये थिकनेस आपके। Combined natural and forced convection. In when you are discussing about the combined natural and forced convection, मीन कंबाइंड उसमें नेचुरल कन्वेक्शन का फैक्टर भी इन्वॉल्व है और फोर्स का भी इन्वॉल्व है। इन दैट केस what will happen in actual practice, heat transfer occurs by combined effect of free and forced convection. In order to understand the importance of natural and forced convection, it is necessary to determine the ratio of buoyancy force to the inertial force. ग्रेशियस नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारी बॉयंसी फोर्स को, और जो आपके पास रिलाई नंबर है वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनर्शियल फोर्स। सो G/R² अगर ग्रेटर देन 1 है, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, इट इज नेचुरल कन्वेक्शन जो है वो डोमिनेट है। अगर ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल 1 है तो बोथ नेचुरल एंड फोर्स कन्वेक्शंस जो हैं वो दोनों हो रही होंगी। और अगर ये वेरी वेरी लेस देन 1 है तो फिर फोर्स्ड कन्वेक्शन डोमिनेट कर रही है। मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पे फोर्स कन्वेक्शन भी हो रही है, नेचुरल भी हो रही है, जाहिर है अगर आपने एक कमरे के अंदर पंखा चलाया हुआ है तो उसकी वजह से सर्कुलेट एयर कर रही है, लेकिन वहाँ पे नेचुरल एयर की मूवमेंट भी है। अब अगर ये प्रोडक्ट हमारे पास बढ़ रहा है, 1 से ग्रेटर है, तो हम कहेंगे कि नेचुरल कन्वेक्शन डोमिनेट कर रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बहुत बड़े आपके पास, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो है ना लाहौर के अंदर जैसे डिफरेंट जो है वो मुगलिया दौर के टॉम्स वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पे जो है ना उनकी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर ऐसी है, उन्होंने वेंटिलेशन का निज़ाम ऐसा रखा हुआ है कि वहाँ पे आप शदीद गर्मी में भी बैठे तो आपको बड़ी कूलिंग इफेक्ट जो है ना वहाँ पे फील हो रहा होता है। वहाँ पे आप फैन लगा देंगे तो आपके फैन से ज़्यादा नेचुरल कन्वेक्शन जो है वो कूलिंग क्रिएट कर रही है। तो अगर आप किसी एक छोटे कमरे में बैठेंगे, वहाँ पे आपकी जो बंद है, जो ओपन नहीं है, तो वहाँ पे आपकी फोर्स कन्वेक्शन डोमिनेट कर रही है। तो उस केस में ये आप इसकी वैल्यू से डिटरमिन कर सकते हैं। अगर ये इक्वल टू 1 है तो फिर जो है ना वो आप कह लें कि दोनों का इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। ओके जी, हमारे पास एग्जांपल 8.1 है। एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at 27 degree centigrade enters at 12 meter long and 1.5 centimeter internal diameter tube whose wall is maintained at uniform temperature of 80 degree centigrade. Calculate the average heat transfer coefficient and rate of heat transfer to the air. फ्री कन्वेक्शन है आपके पास, L इज इक्वल टू 12 मीटर, और इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्यूब इज गिवन, सरफेस टेम्परेचर इज गिवन एंड T इन्फिनिटी इज गिवन। तो H की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एंड आप लोगों ने फाइंड करना है Q की वैल्यू। ओके, कि हीट ट्रांसफर कितना होगा। तो बड़ा सादा सा सवाल है। आपने सबसे पहले मीन फिल्म टेम्परेचर फाइंड करना है, TS प्लस T इन्फिनिटी ओवर 2, वो आपके पास आ गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एट 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड, आपके पास टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, ये आपके पास एयर का टेम्परेचर है जिस पे जो है ना एंटर हो रही, और ये आपके पास सरफेस टेम्परेचर है जो 80 डिग्री पे मेंटेन है, और इनका फिल्म टेम्परेचर हमने एवरेज लगाया। 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये सारी वैल्यू हमें चार्ट से या टेबल से मिलेंगी, ये कोई आपने ज़बानी याद नहीं करनी है। प्रांड्टल नंबर है,
कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर ना गिवन हो, लेकिन जाहिर है वो कैलकुलेट करने के लिए कुछ और पैरामीटर्स भी चाहिए होंगे, के की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू तो आप निकाल लेंगे ना, 1/TF, वो तो निकल आएगी। ये आप जब अकेला टेम्परेचर है तो डिफरेंस अगर हो तो फिर तो हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जहाँ पे डिफरेंस ना वहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती। तो ये आपके पास वैल्यूज जो है सारी की सारी अवेलेबल हैं। इन वैल्यूज को यूज करते हुए आप लोगों ने ग्रेशियस नंबर का फार्मूला यूज करना है, तो GR की वैल्यू आ गई है, और रिलाई नंबर का फार्मूला यूज करना है तो रिलाई नंबर की इसकी वैल्यू आ गई है। अब ये दोनों का प्रोडक्ट क्यों निकाला है, हमारे पास ये वैल्यू है, ये बेसिकली हमें बताएगी कि हम लोगों ने फार्मूला कौन सा यूज करना है। तो फिर हम लोगों ने देखा है कि GR PR का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 10⁻⁹ है। बेसिकली हम देखते हैं कि इसके साथ ये जो मल्टीप्लायर है ना, ये 10⁻⁹ से ज्यादा है, तो हमें पता चल गया कि फ्लो टर्बुलेंट रीजन। अब ये फार्मूलाज जो पीछे दिए हों उनके साथ लिखा हो कि ये वैल्यू 10⁻⁹ से कम होगी तो फिर लैमिनार है या टर्बुलेंट है, ज्यादा है तो फिर लैमिनार है या टर्बुलेंट है, ये गिवन हो। अगर टर्बुलेंट है तो फिर आप लोगों ने ये कोरिलेशन यूज करना है। नुसेल्ट नंबर की वैल्यू आ गई है, नुसेल्ट नंबर की वैल्यू आ गई है, तो आप लोग अब यहाँ से एल की वैल्यू है, के की वैल्यू है, नुसेल्ट नंबर की वैल्यू आ गई है, ये एवरेज नुसेल्ट नंबर है, ये आप याद रखें। तो ये यहाँ से आप एच की वैल्यू निकाल लें। अब जब h की वैल्यू आ गई है तो आप q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। q इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। h की वैल्यू है, a की वैल्यू आप निकाल लें, और टेम्परेचर्स आपको दिए हुए हैं, तो ये आपके पास q की वैल्यू आ गई। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। हॉरिजॉन्टल हीटिंग रॉड, रॉड है हैविंग अ डायमीटर ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ 1 मीटर इज प्लेस्ड इन अ पूल ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड अमोनिया एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अमोनिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन है। द हीटर इज मेंटेन एट अ कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री। टीएस की वैल्यू दी हुई है, कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर रेट। तो हॉरिजॉन्टल रॉड की डायमेंशंस गिवन है, टी इन्फिनिटी की वैल्यू दी हुई है, एम्बिएंट टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट है, टीएस की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास को रिलेशन वही यूज होगा, Q इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। तो इसमें सबसे पहले आप H की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, नुसेल्ट नंबर इंटू के ओवर एल। ठीक है, तो आपके पास ये H की वैल्यू आ जाएगी। तो सर इसको कैलकुलेट करने के लिए, नुसेल्ट नंबर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले फिल्म टेम्परेचर निकालना है, दैट इज द एवरेज ऑफ सरफेस टेम्परेचर एंड एम्बिएंट टेम्परेचर। और फिल्म टेम्परेचर आ गया तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपके पास प्रोंडेल्ट नंबर की वैल्यू आपने चार्ट या टेबल से देखनी है। ये टेबल्स आपको गिवन होंगे, बुक के अंदर अवेलेबल हैं, चार्ट्स भी अवेलेबल हैं, सारी वैल्यूज वहां से निकालें। प्रोंडेल्ट नंबर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और के की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आप इसको रिलेशन से निकाल लेंगे। अब सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो ग्रेशियस नंबर की वैल्यू फाइंड कर लो, रिलाई नंबर की वैल्यू फाइंड कर लो, और फिर आप GR PR इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो। अब ये 10⁻⁸ है, ठीक है, 10⁻⁸ है। फॉर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर GR/PR बिटवीन 10⁻⁷ to 12, अगर इस रेंज में हो, पीछे फार्मूलाज जो अभी हमने पढ़े हैं, तो नुसेल्ट नंबर हम इसको रिलेशन से निकालेंगे। अब इसमें C और M की वैल्यू जो है वो 0.125 और M की वैल्यू 0.33 है फ्रॉम हीट ट्रांसफर डाटा बुक। ये भी आपने बुक में से देखनी है, बुक शुड बी अवेलेबल विद, ठीक है। क्योंकि ये आपको चार्ट्स या टेबल्स एक दफ़ा पढ़ने नहीं आएंगे, तो एग्जाम में ये वैल्यूज आपको ऐसे लिख के नहीं दी जाएंगी, वो आपने चार्ट्स दिए जाएंगे या टेबल्स दिए जाएंगे, वहां से खुद तलाश करें। तो नुसेल्ट नंबर की वैल्यू आ गई है। अब आप लोग सिंपली इस इक्वेशन में पुट करें, एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और एच की वैल्यू आपके पास आ गई है तो आपके पास क्यू की वैल्यू।
Next example is a steam pipe. A pipe आ गया है आप 7.5 centimeter diameter is covered with 2.5 centimeter thick layer of insulation and has a surface emissivity of 0.9. The surface temperature of insulation is 80 degrees centigrade and pipe is placed in atmospheric air at 20 degrees centigrade. Considering heat loss both by radiation and natural convection, calculate the rate of heat loss from 6-meter length pipe and overall heat transfer coefficient and heat transfer coefficient due to radiations. रेडिएशंस आपने वो कंबाइंड कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हीट ट्रांसफर इफेक्ट भी पढ़ा है। डायमीटर दिया हुआ है, एमिसिविटी की वैल्यू दी हुई है, लेंथ दी हुई है, सरफेस टेम्परेचर दिया हुआ है, एम्बिएंट टेम्परेचर दिया हुआ है, क्यू एट एल इज इक्वल टू 6 मीटर फाइंड करना है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की और रेडिएटिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मीन फिल्म टेम्परेचर निकालने और उसके ऊपर एयर की जो है वो प्रोंडल नंबर, डायनामिक विस्कोस, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी और फिल्म टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी। Here L is equal to D, ये गिवन है। ग्रेशियस नंबर का फार्मूला आपके पास गिवन है, इसमें वैल्यूज पुट करके आप ग्रेशियस नंबर की वैल्यू निकाल ले, प्रॉन्डल्ट नंबर की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो दोनों का आप प्रोडक्ट लेने, ये प्रोडक्ट 10 पावर 6 की रेंज। तो चूंकि ये दोनों का प्रोडक्ट 10 पावर 9 से कम है विद इन अ ट्यूब, तो फ्लो लेमिनार कंडीशन में है, तो उसके लिए नुसेल्ट नंबर की हमारे पास ये कोरिलेशन यूज होगा। तो नुसेल्ट नंबर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन में नुसेल्ट नंबर की वैल्यू पुट करें तो आप लोग एच की वैल्यू, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे नुसेल्ट नंबर की वैल्यू पुट करें और एच की वैल्यू। क्लियर? हीट लॉस फ्रॉम 6 मीटर लेंथ, अब क्यू आर बाई कन्वेक्शन जो है और कंडक्शन हम लोगों ने निकालना है। ये बेसिकली बाई कन्वेक्शन जो है ये सी दिया हुआ है, एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, तो ये आ गया है। और रेडिएशन से निकालना है तो एप्सिलॉन सिग्मा ए T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4, एप्सिलॉन की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू है, ए दिया हुआ है, T1 और T2 की वैल्यू आपको गिवन है, इनको आप लोगों ने कन्वर्ट कर लिया हुआ है उसमें केल्विन्स में, तो क्यू आर की वैल्यू भी आपके पास है। द हीट लॉस, टोटल हीट लॉस अब कैसे आएगा, दोनों को ऐड कर लें। आप देखिए ये कोरिलेशन आप लैब एक्सपेरिमेंट में भी आप ये चीजें डिस्कस कर लें। तो ये क्यू टोटल आ गया। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए क्यू टी इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी आ जाएगा। यू की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है, तो ये ए और डेल्टा टी लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएंगे। ए की वैल्यू आप पुट कर लें, डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर लें और Q की वैल्यू पुट कर लें, तो ये आपके पास जो U है उसकी वैल्यू आ गई। अब U आपके पास किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हीट ट्रांसफर। तो आपके पास HC की वैल्यू है, U की वैल्यू है, तो यहाँ से HR की वैल्यू आप निकाल सकते। क्लियर? तो ये आपके पास कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी आ गया है और कंडक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी आ गया है। So the links for today's lecture would be shared on this slide later on. So this was all about for convection heat transfer. Okay. So now we will take a break of 10 minutes, and after that we will restart. Okay. तो उसके लिए जो है वो हमारे पास इस लेक्चर का जो पार्ट बी है उसका हम थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। हम 10:35 पे दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगा, तो आपने उस लिंक के थ्रू दोबारा ज्वाइन करें। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।